ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਸਾਈਬਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆ SMZ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਸੀ ਯਾਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ CM ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਕੀ ਗੰਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਰੰਟਲੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਟ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। So in this show we'll but talk about general technology ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਆਰ ਫਰੇਮਵਰਕ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਲੌਕਚੇਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਲੌਕਚੇਨ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਬਲੌਕਚੇਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਲੌਕਚੇਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਵਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਟਕੋਇਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਕੋ ਮਤ ਸਿਖਾ ਚੱਲ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰੈਂਕਲੀ ਐਵੇਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। I'll be searching each and everything over here what's happening currently and within instant of shooting this video so क्या हो रहा है इसके अंदर। सो ये भी हम डिस्कस करेंगे भाई। हिंदी भी आती है, हिंदी भी बोलूँगा, ये नहीं है कि पंजाबी ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਗੜਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਹੁਤ ਬਵਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਬਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬੜੀ ਹਾਈਲੀ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। The prices of Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, all the cryptocurrencies fell down instantaneously. Reason being, in India, many people are using a whole lot of cryptocurrencies. They have the cryptocurrencies and they started dumping their shares, their stocks in crypto, due to which the market fluctuated very highly because हर किसी को डर लग गया भाई क्रिप्टो बैन हो जाएगी तो पैसे का क्या होगा। पहले भी हुआ था, RBI ने बैन किया था। क्या हुआ 2020 की स्टार्टिंग में कोविड के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा RBI को, भाई तुम ऐसे किसी करेंसी को क्यों बैन कर सकते हो, ऐसी कैसी टेक्नोलॉजी को बैन कर सकते हो, इंडिया को ग्रो तो करवाना ना। Trading in the cryptocurrency has now been allowed. The Supreme Court has opened way for virtual currency in India. तो भाई डरो मत, क्रिप्टो रिस्ट्रिक्शन जरूर आएंगी वो तो मुझे भी पता है बट बैन करने जितनी नहीं है हमारी सरकार। बैन करेंगे तो क्या टेक्नोलॉजी से निकालेंगे, एक दो सा बूम टेक्नोलॉजी इंडिया बूम में आगे है उसको पीछे करेंगे, डोला बढ़ जाएगा IT सेक्टर में। ऐसा नहीं होता। IT सेक्टर इस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी तलब बना के रखा हुआ पूरे कंट्री में। चलो अब चलते हैं, क्रिप्टो की एक ताज़ा खबर आई है, कल ही आई है, हाँ एक ही दिन हुआ है। ये आई है हमारे पड़ोसी से जो सा कभी हमारा हिस्सा भी था बट अब तो बाहर चला गया और उसके नाम पे तो हर आए दिन विवाद करते रहते हैं अपने पॉलिटिकल लोग। नाम नहीं लूंगा, पता है आपको किसका नाम, कौन सी कंट्री का बात कर रहा हूँ, चाइना नहीं पाकिस्तान। चाइना का दोस्त या जो मर्जी कह लो, पाकिस्तान, ठीक है। चलो तो अभी जो खबर आई है, खबर ये आ रही है कि क्रिप्टो को पूरी तरह से बैन करने के बारे में सोच रही है ये अपनी इमरान खान की सरकार पाकिस्तान में, अपनी थोड़ा यार अपने पड़ोसियों की। हम तो इंडियन हैं, प्राउड टू बी इंडियन, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो क्या कहना है पाकिस्तान सेंट्रल बैंक का। पाकिस्तान सेंट्रल बैंक ने रिकमेंड किया है क्रिप्टो बैन हो जाए।
और एनडीटीवी गैजेट 360 की हेडलाइन है, क्रिप्टो सेक्टर कुड सफर इन पाकिस्तान एज इट्स सेंट्रल बैंक लुक्स टू बैन क्रिप्टो करेंसीज। तो यार इसका क्या असर होगा? पाकिस्तान में इतने क्रिप्टोस हैं लोगों के पास? वैसे तो मुझे लगता होंगे, सभी पॉलिटिशियंस से रखना होगा। ब्लैक मनी को छुपाने का सबसे बढ़िया जरिया ही ये अपना बिटकॉइन महाराज है, और एक तो वो बढ़ते भी हैं, उससे बढ़िया क्या होगा? और उसको कोई ट्रैक भी नहीं कर सकता, इससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं। क्रिप्टो ही है, सब कुछ है अभी के टाइम में। चलो इस आर्टिकल को पूरा पढ़ते हैं, आप भी पढ़ो, ये साइड में आ रहा है, मैं भी पढ़ता हूँ और देखते हैं क्या है, फिर आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ ये क्या चल रहा है इधर खेल। तो आफ्टर एल साल्वाडोर made Bitcoin a legal tender in September last year, the crypto culture witnessed expansion in several parts of the world. However, crypto sector would likely encounter obstacles in Pakistan. ਉਹ ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ, ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਟੈਂਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਐਵੇਂ ਲੀਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਲੈ ਲਏ, ਸਟਾਕਸ ਲੈ ਲਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ। ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਏ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ however the crypto sector could likely obstacle in Pakistan। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਵਗੈਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਯਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰੋਗੇ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਅ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੇਸਡ ਸਰਵਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਪੀ ਬਲੌਕਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਆਇਆ। ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਟੌਰ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਟੌਰ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਈਪੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, पता ना, दी अनियन राउटर सर्च कर लियो, वैसे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे पवा दूंगा, वो देख लियो, बड़ी सही चीज़ है। तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਏ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਈ ਐਵੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। चलो ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਪੜਦੇ ਆ। The State Bank of Pakistan has submitted a document to the Sindh High Court calling cryptocurrencies like Bitcoin illegal and unusable. The trade purpose, as per the report by Sama, the SBP has also reportedly suggested that fines must be levied against crypto exchanges operating in Pakistan. भाई यही चीज़ ना एक्चुअली हमारे इंडिया में भी हुई थी। ये अपना RBI को हो गया कि यार करेंसी का तो जो सा ट्रांजैक्शन हो रही है ये क्रिप्टो में हो रही है, अगर क्रिप्टो में होगी तो उनके बैंक्स का क्या यूज। तो ये बैंक्स डर रहे हैं, सीधी सी बात, क्योंकि बैंक्स हैंडल नहीं कर सकते क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को, क्योंकि नॉर्मल ट्रांजैक्शन वो नोट होती है उनके साथ, वो कंट्रोल कर सकते हैं, इधर उधर कर भी सकते हैं, बट ये क्रिप्टो में नहीं छेड़खानी कर सकते ना, इस करके डर रहे हैं, और कोई बात नहीं है, सीधी सी जो मुझे लग रहा है। ठीक है, क्यों यार, एक बात सुनो, क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो एक ऐसे नेटवर्क में बना हुआ है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। जरूरी नहीं है ब्लॉकचेन एक बहुत पॉपुलर टेक्नोलॉजी है क्योंकि बिटकॉइन उस पे है, बट काफी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज है जो दूसरी टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है, लाइक टेंगल जो यूज होता है आयोटा में। आयोटा भी बहुत अच्छी करेंसी है, चेकआउट कर लेना, स्टेबल रहती है ज्यादातर, तो स्टेबिलिटी के लेवल में मैं कहूँगा आयोटा बहुत अच्छी है, और प्राइस लेवल भी बिटकॉइन से बहुत ज्यादा कम है। तो उसमें भी देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने सर्वर दिए हैं आयोटा को, आईओटी बेस्ड इनका नेटवर्क है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो जितने भी ट्रांजैक्शंस होती है इस क्रिप्टो करेंसी में, उनका रिकॉर्ड होता है, सिंगल रिकॉर्ड में तो मल्टीपल रिकॉर्ड होता है, और वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स की वेरिफिकेशन भी होती है। विदाउट वेरिफिकेशन कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। बट अब वेरिफिकेशन कौन कर रहा है? ऑटोनोमस वेरिफिकेशन है, ये जो उनसे लोग माइनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो इनके थ्रू ही तो वेरिफिकेशन हो रही है, और कोई बंदा इस ट्रांजैक्शन को खोल के देख नहीं सकता किसने किसको की। एक सिंपल सेंडर एड्रेस होता है, एक रिसीवर एड्रेस होता है, और वो भी यूनिक होता है हर किसी का, और किसी में ये सिंपल में नहीं लिखा होता है, एनक्रिप्टेड होता है भाई, पब्लिक की प्राइवेट की के थ्रू होती है ट्रांजैक्शन सारी, तो बहुत ज़्यादा लेवल के इंक्रिप्शन है, तो उसको छेड़खानी भी नहीं कर सकते। अगर आप एक भी ट्रांजैक्शन को छेड़खानी कर भी देते हो गलती से, पूरा सिस्टम कोलैप्स होता है।
तो इसी को ध्यान रखते हुए पूरी कम्युनिटीज बनी हुई है जो इस सिस्टम को कोलैप्स होने से रोकने के लिए उनका वेरिफिकेशन का स्टेज और बढ़िया करते रहते हैं। अब यही बात है कि बिटकॉइन को तो कोई ओनर भी नहीं है, वैसे तो है सतोशी नाकामोटो हमारे पास नाम है, बट वो कौन है आप जानते हो? मैं भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता सतोशी नाकामोटो कौन है। ठीक है, पूरी दुनिया ढूंढ रही है कौन है भाई जिसने बिटकॉइन बनाया और इतनी बड़ी तबाही ला दी पूरी दुनिया में, तो कोई भी नहीं जानता यार, तो सिक्योर्ड है। ठीक है, अब ये तो होगी पाकिस्तान की बात कि पाकिस्तान ने बैन करेंगे, यार मैं पाकिस्तान में तो रह नहीं रहा, मुझे इतना इंपैक्ट नहीं करता है कि नहीं? एक्चुअली करता है। अगर मैं एक क्रिप्टो ट्रेडर हूं या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, अगर कोई भी कंट्री किसी क्रिप्टो करेंसी को बैन करती है, उसका क्रिप्टो की मार्केट में इंपैक्ट पड़ता है, बिकॉज इट इज ए ग्लोबल कंट्री। अरे कहना क्या चाहते हो? ग्लोबल करेंसी जो किसी एक कंट्री के थ्रू नहीं सभी कंट्रीज को लेकर चल रही है। ठीक है, जैसे अगर इंडियन रुपी को नुकसान तब होता है जब इंडियन गवर्नमेंट कुछ ऐसा उठा सीधा स्टेप ले लेती है इंडियन रुपी के लिए, बट अगर कोई यूएस लेती है कोई स्टेप अपने रिलेटेड अपने इनर सेल्फ में, तो उसका इंडियन रुपी पे इतना नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो क्रिप्टो एक ग्लोबल है, तो उसको नुकसान होगा अगर एक भी कंट्री करेगी। तो ही मैंने पाकिस्तान का दिया भाई, मैं पाकिस्तान प्रेमी है कुछ नहीं हूं, बट ये है कि मैंने पाकिस्तान अगर बैन करेगी तो नुकसान हर क्रिप्टो ट्रेडर को होगा ऑल अराउंड वर्ल्ड। तो इसी के लिए हमें कवरेज तो करनी ही पड़ेगी ना। अब उसके अलावा क्या सीन पड़ता है यहां पर अगर देखा जाए कि क्रिप्टो में क्या सीन है, लेट्स सी इंडिया में क्या सीन चल रहा है। यार सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है ना, इंडिया में हम रह रहे हैं तो इंडिया का तो पता चले। तो इंडिया में सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्रिप्टो के रिगार्डिंग आई थी 1 महीना पहले, उससे भी पहले तब आई थी जब एक पेपर रिलीज किया गया था पार्लियामेंट के थ्रू कि ये बिल अंडर रिव्यू है, क्रिप्टो बिल, कि जिसके अंदर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को कर दिया जाएगा बैन। ठीक है, तो उसके बाद भी एक न्यूज आई है, तो मैं आपको वो न्यूज खोल के दिखाता हूं। एक मुझे खोलने दीजिए, सर्च कर लूं। A few moments later. क्रिप्टो बैन इन इंडिया। तो क्या है क्रिप्टो बैन इन इंडिया? न्यूज पढ़े, 1 महीना पुरानी है, तो आपको क्या अपडेटेड तो बता नहीं रहा, तो पुरानी बता रहा है, बट समझना तो जरूरी है। तो ये है बिजनेस इनसाइडर इंडिया की न्यूज और इनकी हेडलाइन है नो क्रिप्टो बैन इन इंडिया, सेबी विल रिपोर्टेडली बी पुल्ड इनटू रेगुलेट द सेक्टर। और ये पता किसने बोला है? हमारी प्यारी कह लो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन, मैं नाम तो गलत नहीं बोल रहा, मुझे नाम इनके याद नहीं रहते। ठीक है, निर्मला सीतारमन यही नाम है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का, वैसे तो मेरे अकॉर्डिंगली। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। द इंडियन गवर्नमेंट इजंट लुकिंग टू बैन क्रिप्टो करेंसीज इन कंट्री बट इट इज लुकिंग टू रेगुलेट द क्रिप्टो करेंसीज। कैसे? कहते इनको हम एसेट डालेंगे। ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज आर एसेट, जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स भी एसेट होते हैं ना, जब आप स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदते हो एसेट है ना आपका, वैसे ही क्रिप्टो भी एसेट होगा। अब अगर क्रिप्टो एसेट होगा तो वो कैसे कंट्रोल होगा? क्योंकि ये तो बहुत ही अनकंट्रोलेबल है, कभी तो कंट्रोल कर नहीं सकते, क्योंकि इसका आपको क्रिप्टो खरीदना है, आपको एक प्राइवेट वॉलेट बनाते हो जिसका ट्रांजैक्शन कहीं पर रिकॉर्ड ही नहीं होता, अब ये कैसे करेंगे? तो इनका इन्होंने सोल्यूशन दिया, द कंट्रीज मार्केट वॉचडॉग द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जो स्टॉक मार्केट पे नजर रखती है, विल बी एट द हेल्म अकॉर्डिंग टू कैबिनेट नोट सीन बाय एनडीटीवी। एनडीटीवी ने ही बताया भाई कि सेबी को ड्यूटी जा सकती है क्रिप्टो इंडिया में संभालने की। तो और इन्होंने ये भी बताया है दिस कन्फर्म्स टू व्हाट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेड अर्लियर दिस वीक। तो ये 1 महीना पहले के 1 हफ्ता पहले की बात है। ठीक है, अभी की न्यूज नहीं है, 1 हफ्ता पहले नहीं। ठीक है, week about Bitcoin not being recognized as currency for payment in India. India is, however, working on its own central bank digital currency. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये CBDC क्रिप्टो नहीं है, वर्चुअल करेंसी जरूर है, क्रिप्टो नहीं है। ये बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो नहीं है, इसको एक सेंट्रल बॉडी कंट्रोल करेगी, बट रन ये ब्लॉकचेन नेटवर्क जैसे किसी नेटवर्क पे करेगी, सिक्योर्ड बट सेंट्रली लुक्ड आफ्टर। मतलब इसकी सारी ट्रांजैक्शन एक सेंट्रल बॉडी देखेगी जो इंडियन गवर्नमेंट होगी।
ठीक है। और जितना मुझे लग रहा है इसकी जो सी इस करेंसी की वैल्यू होगी दैट वुड बी पैक्ड टू द इंडियन रुपी, ठीक है, मुझे तो यही लग रहा है, बट आगे देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में, अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते, जब आएगी तब देखेंगे। तो दैट विल बी गवर्न्ड एंड मॉनिटर्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज आई सेड, ठीक है। द नोट आल्सो रिपोर्टेडली हाईलाइट द सिटीजंस विल नीड टू डिक्लेयर देयर क्रिप्टो एसेट्स, जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर डिक्लेयर करने पड़ते हैं ना, वही चीज है, क्रिप्टो एसेट डिक्लेयर करने हैं, एंड कीप देम ऑन इंडियन एक्सचेंजेस, मतलब कि जो एक्सचेंज इंडिया में बनी है और इंडियन गवर्नमेंट जिनको कंट्रोल कर रही है और जो अपना डाटा इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकती है, उन्हीं एक्सचेंजेस पे रख सकते हो। मुझे तो लगता है यार फिर बाइनेंस का तब टाटा बाय बाय, बाइनेंस जी देख लो यार क्या कर सकते हो, इंडियन गवर्नमेंट के साथ साझ घाट बैठा लो कुछ तो, ठीक है। जो कि अगर मैं ये बताऊं कि इंडियन एक्सचेंजेस पे नजर रखेगी तो उसमें ही रखना डाटा, तो ये काइंड ऑफ राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में शायद PIL पानी पड़ेगी कि भाई देखो यार हमारे प्राइवेसी डिस्ट्रॉय हो रही है, फंडामेंटल राइट टूट रहा है, तो आई थिंक सो देयर कुड बी सम ग्लिच ओवर दैट, और या तो कोई लूप होल ढूंढ के ये लॉ पास होगा, तो लेट्स सी, ठीक है। क्योंकि यार इकोनॉमिक्स भी कंट्री की देखनी पड़ती है, वो फाइनेंस मिनिस्टर का काम है और उनको डाटा तो चाहिए, ठीक है। वैसे हालांकि काफी जगह पे हमारी गवर्नमेंट कहती है यार हमारे पास डाटा नहीं है, किसान ये जो सा आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, लोगों की मौत हुई और उनके पास वो डाटा नहीं था। कोविड में कौन से लोगों की मौत हुई उसका भी सही डाटा नहीं था, हाँ, बट जो सा डाटा इनके हक में होता है वो तो होता है, ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो देखते हैं, डाटा तो रख ही लेंगे, निकाल ही लेंगे, मोदी जी हमारे बहुत ग्रेट हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, आई रिस्पेक्ट माई PM, आई रिस्पेक्ट माई कंट्री, ऑलराइट। तो प्लीज कमेंट हेट नहीं आनी चाहिए, ठीक है, आई एम गुड। Alright, once the bill becomes law, people will be given some time to transfer their holdings to meet these requirements. Failing to do so could result in penalties within the range of 5 crore to 20 crores. बस बहुत छोटा अमाउंट है, 5 करोड़ है, इधर ही पड़े मेरे अकाउंट में पड़ेगी, पढ़ाइए देखो, अरे एडिटर लगा दो यार 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़, 5 करोड़ तो कुछ होता ही नहीं है ना, क्या है यार। अगर मैंने सपोज 10,000 के क्रिप्टो किया और 10,000 का क्रिप्टो एसेट नहीं डिक्लेयर किया तो 5 करोड़ का फाइन, या सपोज मैंने 10 लाख का किया तो 10 लाख का डिक्लेयर करना मैं भूल गया या नहीं किया तो 5 करोड़ का फाइन, भाई क्या थोड़ा तो रीजनेबल रहो, ठीक है। ये एक्चुअल लॉ आएगा तब देखेंगे। Moreover, India has planned to amend its Prevention of Money Laundering Act (PMLA) to make provision for cryptocurrency activity. According to Sitaraman, the government is closely monitoring the risk that cryptocurrencies present. Risk तो बहुत है. True. Narendra Modi highlighted the volatile nature of digital tokens in November, calling on global cooperation from democratic nation to regulate the sector and protect the youth. यूथ को बहुत पता है यार, मैं यूथ हूँ, मैंने इन्वेस्ट भी किया था, वापस निकाल लिया यार, मैं टेक्नोलॉजी में काम करता हूँ, अपन को टेक्नोलॉजी से मतलब है, ठीक है। सो झूठ बोल रहा है। No, I'm telling you. यार सीधी सी बात है, ठीक है। कॉइन स्विच, कोबे कॉइन, DCX, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज क्रिप्टो सेक्टर में आ चुकी है, ओपनली मार्केटिंग भी कर रही है, अपने प्रमोशनल एड्स वगैरह सारी चला रही है ऑनलाइन। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि प्राइवेट कंपनीज जो सी इंडियंस है उसके अंदर ट्रांसफर करना है और इंटरनेशनली को बाहर निकालना है, तो बाइनेंस भी भाई इंटरनेशनल है, सबसे बड़ा क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है बाइनेंस, उसके एक नहीं 6-7 पोर्टफोलियोस है, तो तुम लोग भाई उसको बैन करोगे, मोस्टली लोग उनके ऊपर जाते हैं बाइनेंस जैसे पे, कितना डिफिकल्ट है भाई। इकोनॉमी का डाउनफॉल आ सकता है, रिस्क है, क्योंकि काफी लोगों ने, काफी बड़े बड़े लोगों ने इस पे इन्वेस्ट किया हुआ क्रिप्टो में। अगर आप सिर्फ इंडियन वालों को कहोगे कि इंडिया में ही होना चाहिए और उनका रिकॉर्ड ट्रैक होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्क है। हाँ, आप एसेट डिक्लेरेशन कर लो, दैट्स गुड, कि हाँ यार पता तो चले कितना इनकम टैक्स आ रहा है यार, वो सही है यार, वो सही है। गवर्नमेंट को वर्क करने के लिए फाइनेंस चाहिए, और अगर आप अपना फाइनेंस एसेट में नहीं रखोगे तो नुकसान होता है गवर्नमेंट का क्या है, एक नेशन का नुकसान है। सो एक नेशन को चालू रखने में टैक्सेशन चाहिए और आपको अपने एसेट डिक्लेयर करने चाहिए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। बट इन द सेम कंटेक्स्ट आई एम अगेंस्ट कि आप इंटरनेशनल जो से ये अपने एप्लीकेशंस होंगी इंटरनेशनल कंपनी से, उनको बाहर रखोगे, इससे वो एक इकोनॉमी डाउन करने की बात है, सीधी सी बात है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, बट इतना मुझे लगता है कि हाँ
इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर जाएगी कंट्री से उस केस से। भाई नए ऐसी कंपनीज क्यों आएंगी अगर उनका ऐप ही यहाँ पर नहीं चल रहा, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो है ना भाई। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। एंड मुझे लगता है कि अभी ये जैसा बिल नहीं लेकर आया गया पार्लियामेंट में पास होने के लिए, उसका भी रीजन यही होगा कि अभी इन्होंने ये टेक्निकलिटीज पे वर्क ऑन नहीं किया कि उसका इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट होगा। तो करंटली आई वुड सजेस्ट कि हाँ, जो प्री रिलीज हुआ था वो गलत था, बट मे बी अगर इसको थोड़ा और बेटर किया जाए तो कमिंग डेज में वो एक अच्छा बिल आ सकता है क्रिप्टो को एनालाइज करने में इंडिया में। एंड आई थिंक इंडिया ने जो कंप्लीट बैन का नहीं कहा, दैट इज गुड। पाकिस्तान जैसा तो नहीं है, शुक्र है हम पाकिस्तान से बढ़िया हैं। जय हिंद। ओके, सी यू सून एंड टाटा बाय बाय एंड कीप वॉचिंग। हम हर हफ्ते में काइंड ऑफ क्या कोशिश करेंगे, एक बार तो वीडियो ले आए हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। ओके बाय।